તપાસ અદાણી પર અમેરિકામાં ચાલી રહી છે, પણ કેસની લપ ભારતમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે ઘૂસી ગઈ છે. રાહુલ ગાંધીએ અદાણીને છાવરવા અને મદદ કરવાના ભાજપ અને મોદી પર આક્ષેપ લગાવ્યા છે, ત્યારે ભાજપના સંબિત પાત્રાએ પણ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરી રાહુલ ગાંધીને કડક સવાલોથી ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો. સંબિત પાત્રાએ રાહુલ ગાંધીને કેટલાક સવાલો પૂછ્યા અને સાથે મોદીની ક્રેડિબિલિટી વિશે પણ વાત કરી, પરંતુ આપણે વાત કરવી છે એ બાબતની કે આમાં અદાણીની તપાસનો મુદ્દો ક્યારે આવશે એના વિશે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંબિત પાત્રા કંઈ બોલતા નથી. કદાચ તેઓ એવું કહેવાનું ભૂલી ગયા હશે પત્રકાર પરિષદમાં કે આ તો સારી બાબત છે કે અદાણી વિદેશમાંથી પૈસા ઉઘરાવી ભારતના અધિકારીઓને ધરવવા માટે ભ્રષ્ટાચાર આપી રહ્યા હતા, તો એમાં વાંધો શું છે? વિદેશના લોકોના પૈસાથી આપણા અધિકારી ધરાયા તો આપણે તો તાળીઓ પાડવી જોઈએ કે વાહ ભાઈ વાહ, અમે નવું મોડેલ લાવ્યા ભ્રષ્ટાચારનું કે આપણા કંપનીના માલિકો વિદેશથી પૈસા ભારતના અધિકારીઓના ભ્રષ્ટાચાર માટે ઠાલવી રહ્યા છે. વિગતે વાત કરીએ એ બંને પત્રકાર પરિષદની, જેમાં મોદી પર રાહુલ ગાંધી વરસી પડ્યા તો રાહુલ ગાંધી પર સંબિત પાત્રા બરોબરના વરસી પડ્યા અને સણસણતા સવાલો ઘા કરી રહ્યા હતા. આમ અદાણીના શેર શેરમાં ધબાકો તો થયો છે, પણ રાજકારણમાં બગડાટી બોલી ગઈ છે. વિગતે જોઈએ અહેવાલમાં શું છે આ સમગ્ર રાજકીય અખાડાની વાત. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે. નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે તુષાર વસ્યા. નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. અદાણી પર અમેરિકામાં ગંભીર આરોપ સાથે મામલો નોંધાયો છે, જેમાં અમેરિકાના રોકાણકારોને ખોટું બોલી ભારતમાં ભ્રષ્ટાચાર આપી કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવાનો આરોપ છે. અદાણી પર આ મામલો અમેરિકામાં ચાલે છે, ત્યારે ભારતની વ્યવસ્થા પર પણ સવાલ પેદા થઈ રહ્યો છે, કારણ કે ભ્રષ્ટાચાર ભારતમાં આપવાની વાત હતી. સાથે અદાણીની કંપની પણ મૂળ ભારતીય હોવાના નાતે અને સત્તા સાથે સાંઠગાંઠના આરોપથી લાંબા સમયથી ઘેરાયેલી હોવાના કારણે ચર્ચા તો થવાની. ગંભીર આરોપોના વચ્ચે અદાણીની કંપનીઓના શેરના ભાવ આજે માર્કેટમાં ગગડવા લાગ્યા અને પાર્ટીઓ લાલ લાલ દેખાવા લાગી. પણ રાજકારણમાં તો બગડાટી બોલી ગઈ, કારણ કે કોંગ્રેસ અને ભાજપ જાણે સામસામે આવી ગયા હોય એ પ્રકારે આરોપ પ્રત્યારોપનો માહોલ જોવા મળ્યો. સવારે રાહુલ ગાંધીએ આ મામલે પત્રકાર પરિષદ યોજી પોતાની વાત સાચી હતી કે મોદી અદાણી એક છે તેવું બતાવવાનો પ્રયાસ કરતા એવું કહ્યું કે અમે માગણી કરીએ છીએ જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટી રચી તપાસ કરવામાં આવે અને અદાણીની ધરપકડ કરવામાં આવે. અને પાછળ તરત જ તેમણે કહ્યું કે હું આ બાબત કહી અને એવું બતાવવા માંગુ છું કે તેમની ધરપકડ નહીં થાય, કેમ કે મોદી અદાણીની પાછળ છે. આમ તેમણે પ્રધાનમંત્રી મોદીને ફરી અદાણીના મામલે આડે હાથ લીધા હતા અને સાથે જ તેમણે એવું કહ્યું કે હિન્દુસ્તાનમાં અદાણીનું કંઈ ન કરી શકાય. મુખ્યમંત્રી 10-15 કરોડમાં પણ અંદર જતા રહે, પરંતુ અદાણી 2000 કરોડનું સ્કેમ કરી બહાર ફરી રહ્યા છે, કારણ કે ભાજપનું પૂરેપૂરું ફંડિંગ અદાણીના હાથમાં છે. માટે પ્રધાનમંત્રી ચાહે તો પણ કંઈ ન કરી શકે. અદાણીએ ભારતને કેપ્ચર કર્યું છે, માટે જ અદાણીને પોર્ટ એરપોર્ટ ડિફેન્સનું કામ આપી દેવામાં આવ્યું છે. આ ગંભીર અને વિકરાળ આરોપ મામલે રાહુલ ગાંધીએ સણસણતા પ્રહારો કર્યા, પરંતુ આ ગંભીર અને વિકરાળ આરોપ જે કંપની પર લાગ્યા છે એ અદાણીએ જવાબ આપવો જોઈએ, એ લાંબો લચક હોવો જોઈએ. પણ તેમણે જવાબ આપ્યો અને ટૂંકા જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે અમારા પર પાયા વિહોણા આરોપ છે અને અમે કંઈ કર્યું નથી, નિર્દોષ છીએ. કોર્ટે પણ કહ્યું છે કે આરોપી છે એ સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તેને દોષિત ન કહેવામાં આવે. અદાણી પર લાગેલા ગંભીર આરોપનો જવાબ 4 લીટીનો આવ્યો, પણ ભાજપના સંબિત પાત્રાએ પત્રકાર પરિષદ કરી રાહુલ ગાંધી પર વિસ્તારથી વાત કરી નાખી. અદાણી તો જાણે તેઓ ભૂલી જ ગયા અને કોંગ્રેસ જ યાદ રહી ગયું હોય. તેમણે કઈ પ્રકારે કોંગ્રેસ પર શાબ્દિક હુમલો કર્યો એ તમે સાંભળો અને જુઓ. धन्यवाद आदरणीय संजय जी, और आप सभी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए. सभी का साधुवाद एवं स्वागत है. आज फिर राहुल गांधी जी ने पीसी किया है. आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे. कोई नया पीसी नहीं है. वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है, और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है. आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो
कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर से गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे, द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना, बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया?
पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना आपके मुताबिक। आपने कहा मुनाफा उनका, तो उनका कौन है? उनका तो ये चारों राज्य में, हमारा कोई नहीं है, उनका तो आप ही के हैं। तो इसका जवाब राहुल जी आप दीजिए। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, ना चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देश की जनता सटीक भाव से जानती है। बंधुगण, स्ट्रक्चर की बात हुई है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, हमें भी पता है, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। और राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया? क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय उनके सरकार में किया था। क्या कारण था? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया की सरकार है, अडानी की कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है, वह भी हम निकाल लेंगे।
छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है, मगर कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है, बंगाल में आपका साठगांठ है। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश है, तमिलनाडु में 4500 करोड़ का निवेश है। 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, रेवंत रेड्डी जी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बघेल अलग है? या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा? मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, और हमने भी 12 वर्ष से मैं प्रवक्ता के पद पे मैं अब देख रहा हूं कि चाहे 2G का केस हो, चाहे CWG का केस हो, कोल स्कैम हो, इन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस समय कोर्ट में जाती थी। अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, प्रभु उनके आत्मा को शांति दे। देश विदेश के एक कद्दावर नेता और एक बहुत बड़े स्थापित वकील थे। हर केस में वो लड़ते थे, केस साबित होता था, इन्वेस्टिगेशन होती थी, हम आधार को लेकर लड़ते थे। और मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार हम केस करते थे, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, आप केस करिए ना, आप केस करिए, कोर्ट जाइए। और मुझे आज तकलीफ हुई इस बात से, आपने अपने पीसी में, आप देश के एक सांसद हैं, छोड़ दीजिए कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर आप एक सांसद हैं, और आपने कहा कि इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में हमें, कांग्रेस पार्टी को कोर्ट का भी काम करना पड़ रहा है, जुडिशरी, आपने पर्टिकुलरली जुडिशरी शब्द का इस्तेमाल किया कि मीडिया भी अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया का काम भी कांग्रेस कर रही है बहुत हद तक, और जुडिशरी का काम भी कांग्रेस कर रही है। वाह, बेल पे बाहर मां बेटे और जुडिशरी का काम कर रहे हैं। आधे लोग तो बेल पे बाहर हैं और ये जुडिशरी का काम कर रहे हैं। बताइए, इस पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जुडिशरी का काम कर रहे हैं। और आज तो मुझे बड़ा दुख लगा, हमारे एक पत्रकार बंधु ने 3 सवाल क्या पूछ लिए, उनसे ऐसे झेप गए कि ये बीजेपी का। अरे भैया, पत्रकार हैं, आप भी तो हमसे पूछेंगे। अभी राहुल गांधी ने ऐसा कहा, कभी हम गुस्साते हैं? कभी नहीं भैया, आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आप सवाल पूछेंगे। और वहां बोल रहे हैं आप बीजेपी का सवाल पूछ रही है। बीजेपी का सवाल नहीं है, वाजिब सवाल था, उत्तर नहीं है, इसलिए आप झेप गए थे। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है, पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अब भारत का जो इकोनॉमिक जहाज है वह रनवे पे 2014 से रफ्तार से दौड़ करके अब 35,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, तीसरे नंबर की इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहा है। तो राहुल गांधी, इंडिया इज नॉट हाईजैक्ड, इंडिया वॉज हाईजैक्ड। टुडे इंडिया इज सोरिंग हाई एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। और बार बार बोलते हैं जेपीसी कर देंगे, जेपीसी बना देंगे। सरकार कहीं बनती नहीं है, कहीं सरकार बनती नहीं है तो जेपीसी बनाकर ही खुश हो जाते हैं। तो बोलते चलो जेपीसी ही बना देंगे, सरकार तो बन नहीं रही है। और जेपीसी बना दीजिएगा तो वहां क्या, कोई बोतल फोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई मुंह फोड़ रहा है, यही चलता है इनके जेपीसी में। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे। यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का
विशेष उनका प्रबंधन है और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना राहुल गांधी बंद करे। इतना कह के मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई।